کل کے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ کرشنا کی کمپنی میں لڑائی ہوئی رہتی ہے اور آتے ہیں تو ایک دو ٹاکے لگے رہتے ہیں. گھر آتے ہیں تو سب سمجھاتے ہیں ان کو. ہاں لڑائی چھڑا کے لاتے ہیں آدتیہ اور کہتے ہیں میرا کافی چاہیے تو کافی جاتے ہیں میرا لینے نیچے. اب آگے تو میرا کافی بناتی ہیں آ کے نیچے اور رسمی پوچھتی ہیں کیا ہوا. کہتے کچھ نہیں بھابھی جانتی نہیں ہے. غصہ کنٹرول ہوتا نہیں کسی پہ ہاتھ چھوڑ رہے ہوں گے لگ گیا بچانے میں. تو رسمی کہتی ہے یہ تم سمجھاتی نہیں ہو. کہتی ہے ہاں وہ سمجھتے بہت ہیں میرے اوپر ہی چلانے لگتے ہیں. کیا سمجھاؤں ان کو میں. ابھی دودھ کہا پاپا نے کہ ہلدی والا دودھ ہے. وہ کہہ رہا نہیں ہم دودھ نہیں پیتے ہیں. ابھی ان کا زہر ڈال کے دے دو تو پی لیں گے وہ ترنت ہی. ابھی آئس منگائیں گے اور بیٹھ جائیں گے. تو کہتی رسمی کہتی ہے میرا دماغ شانت رکھا کرو. تم دونوں کے بھی سب ٹھیک ہو رہا ہے تو تم بگاڑنے پہ لگی ہوئی ہو. ایسے مت بولو. تمہیں پتہ ہے نا روڈلی بیہیویئر ان کو بالکل پسند نہیں ہے. جتنا روڈ بیہیویئر دکھاؤ گی اتنا ہی روڈ ہوتے جاتے ہیں. نارملی بات کیا کرو ان سے. تو میرا شانت ہوتی ہیں اور کافی بنا کے لے جاتی ہیں دیتی ہیں. کرشنا پی رہے ہوتے ہیں تو پرنسس وہی ہوتی ہے. کہتی ہے ارے پاپا ڈاکٹر نے آپ کو سوئی لگائی. تو کہتے ہیں ہاں بیٹا. کہتے پین ہوا پاپا. تو کہتے کہ نہیں بیٹا نہیں پین نہیں ہوا. تو مجھے تو جب ماں لگواتی ہے تو پاپا بہت پین ہوتا ہے. سوئی سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. ارے پاپا. تو کہتے کہ ابھی آپ چھوٹی ہو نا بیٹا بڑی ہو جاؤ گی تو سب آپ بھی میری طرح اسٹرانگ ہو جاؤ گی. تو پرنسس کہتی میرا تو آپ کی طرح واچنگ کرنی ہے. مجھے بھی واچنگ پنچ بیگ چاہیے. تو کرشنا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لا دیں گے بیٹا. میرا کہتی ہے ہاں باپ بیٹی پورے محلے کا منہ توڑتے رہنا پٹی کرواتے رہنا. تو کرشنا ہنسنے لگتے ہیں اور پرنسس بھی ہنستی ہے بھائی یہ دیکھ کے. بچی اس کو سمجھ تو آتا نہیں لے کہہ کے خوب ہنستی ہے. میرا کہتی ہے تو پرنسس سو چلو بہت دیر ہو گئی. سلاتی ہیں مطلب بہت کوشش کرتی ہے بہت دیر میں سو جاتی ہے. کرشنا کو بھی دوا کا نشہ رہتا ہے. کرشنا بھی سونے لگتے ہیں. دونوں کو سلا کے میرا پرنسس کی طرف ساری تکیہ لگا کے پلو نیچے چلی آتی ہیں. مسز مالیہ پوچھتی کیا ہوا میرا. کہتی دونوں سو گئے. تو میرا نیچے آتی ہیں تو کہتی ہیں کیا ہوا. کہہ رہی کچھ نہیں. کہہ رہی مجھے بھی پاپا آپ کی طرح باکسنگ سیکھنی ہے. میں کہا پورے محلے کا منہ توڑتے رہنا باپ بیٹی مل کے اور پٹی کرواتے رہنا بینڈیج. تو سب لوگ نیچے ہنستے ہیں. کہتے کہ ارے بچی ہے. کہتی ہے ہاں وہ بچی ہے. اس نے کار مانگی تو 4 گھنٹے کے اندر انہوں نے کار منگا کے دے دی. آپ کو لگتا ہے وہ پنچنگ بیگ نہیں منگائیں گے. ابھی دیکھیے گا سو کے اٹھنے دیجیے ان کو 2-3 گھنٹے میں ہی آ جائے گا. وہ ان کا ایک ہے نا کہ تم ہاتھ رکھو بیٹا جو ہمارے بس میں سب لے دیں گے. وہی والی چیز ہے ان کو. ان کے بس میں ہوگا تو سب کچھ رہے گا. تو سب کہتے اچھا جانے دو چھوٹی بچی ہے. کہتی ہیں ہاں میں تو سب جانے دے رہی ہوں چھوٹی بچی ہے. بس چھوٹی بچی کے پاپا اور چھوٹی بچی نہیں جانے دے رہے. تو سب لوگ ہنستے ہیں. پھر دھیرے دھیرے ڈنر کی تیاری ہوتی ہے. مسز مالیہ رسمی سے بات کرتی ہیں پوچھتی ہیں. کہتی ہے انہیں ڈاکٹر سے پوچھا تھا انہیں کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ ایک دو ٹیسٹ کرا شہر بھیجے تھے تو اسی میں پتہ چلا کہ 3 منتھ ہو گئے مام مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو مسز مالیہ کہتی ہے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں پتہ چلتا ہے. اور جو ہے اب اپنا دھیان رکھنا بہت زیادہ. تو مسٹر مالیہ کہتے میں کل چلا جاؤں گا اور تمہاری ماں یہیں رہے گی بیٹا بہت دھیان رکھنا ٹھیک ہے. گھر میں خوشیاں آنی چاہیے. تو رسمی کہتی ہے جی پاپا. اور پنڈت جی کو بلواتی ہیں پوچھتی ہیں
सब कैसा है, घर में कोई पूजा वूजा कराने की जरूरत तो नहीं है। तो पंडित जी कहते नहीं, सब शांत है, बस आप लोग खुद से जो पूजा पाठ कर सकते हैं वो करिए। कृष्णा बाबू तो वैसे भी विश्वास नहीं करते हैं, वो तो भगा देते हैं दरवाजे पे से ही। तो कहते नहीं, वो भगाते नहीं है, वो थोड़ा डिस्टर्ब रहते ना अपनी माँ के जाने के बाद से, इसलिए। तो पंडित जी बताते, अरे वो बचपन में जब हम आते थे तो हमारे थैले में से प्रसाद निकाल लेते थे, शंख निकाल लेते थे और कहते थे जो जेब में पैसे रखे हैं शंख चाहे खरीद लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। उनकी मम्मी कितना भी डांटती थी, पैसे ले जब लेते थे तभी हमारा शंख हमें देते थे। तो सब लोग हंसने लगते भाई कृष्णा की बचपन की बातें सुन के। कहते एक बार तो भैया ये आए थे और हम इन्हीं का बर्थडे था, हमसे पूजा करवाए और पूजा कराने के बाद कह रहे पंडित जी आधे पैसे हमारे होते, क्योंकि हमारा बर्थडे ना होता तो आपको इतने पैसे नहीं मिलते। और बाहर हमसे इन्होंने आधे पैसे ले ही लिए। तो सब लोग हंसने लगते हैं, कहते वो बहुत बदमाश है बचपन से ही। तो कहते कि सच में मेरा क्या, कहते हैं हाँ बहुरिया आपको ना पता क्या, आपको नहीं पता। तो कहते कि नहीं पता है। तो दादी कहती है सारी पोल पट्टी खोल दो, नीचे आई है तो अभी तुमको बताइए कैसा मूड है उनका। तो कहते ना भाई हम जा रहे दादी, हम जा रहे, हम ना रुक रहे तुम्हारे वहाँ। कौन रुके भैया, चार बात सुने पैसा छिनवा ही ले अपना, जितना देतना है उतना छीन लेते हैं। पंडित जी चाय पानी पीते हैं, उठते हैं और चले जाते हैं हंसी मजाक करके। और कृष्णा थोड़ी देर बाद उठ, प्रिंसेस उठती है, कृष्णा को भी उठा देती हैं पापा पापा करके। तो कृष्णा आंखें बंद किए हुए लेके आते हैं नीचे, सब लोग देख के बहुत हंसते हैं, कहते हैं मेरा मेरा तो मेरा, कहती है हाँ, कहते हैं लो यार इसको सोने भी नहीं देती है ये। तो मेरा लेती हैं खिलाती हैं उसको, कहती है कृष्णा को कॉफी दे दो मेरा। कहती है पहले जाइए आप सावर लेके आइए, आपकी आंखें नहीं खुल रही। कह रहे यार इतनी रात में क्या सावर लूँ मैं, तो हम इतनी रात में हम नहीं लेंगे, तो कॉफ़ी दे दो अभी खुल जाएगी 10-15 मिनट बाद आके। तो मीरा जाती है, अपना साड़ी का पल्लू तो साइड से भिगा के लाते हैं, उनका फेस जो है क्लीन करती हैं, आंखें खुलती हैं उनकी। तो राहुल कहता है भाई ऐसा सुख तो मुझे भी चाहिए। तो कृष्णा कहता है हाँ ले यार, तेरी वाली आई है ना, बोल क्लीन कर दी। कि भाभी से चाहिए थे, अब साले तू जेठ है इनका। तो सब चुप हो जाते हैं। और कहते कृष्णा कहता है और भाई रूबी कैसी हो, भाभी जी कहो या रूबी कहो। तो रूबी बेचारी कुछ नहीं बोलती है। कृष्णा जाते हैं रूबी के पास बैठते हैं, कहते भाई मेरी तो भाभी, हम तो छू सकते हैं, जेठ थोड़ी हूँ मैं। तो रूबी से सेकंड करते हैं और हाथ पकड़े रहते, छोड़ते रहे। तो राहुल कहता है हाथ छोड़ भाई, सेकंड बस 30 सेकंड का बहुत होता है। तो कृष्णा कहता है अरे भाई फील कर लूँ कैसी है तेरी। तो रूबी बेचारी अपना हाथ खींच लेती है। तो कृष्णा कहता है और भाभी जी खाना वाना बनाने आता है आपको। तो कहती है हाँ आता है। तो कहती है कुछ बना के खिलाइए अभी भी भाई, हमें तो अपने हाथों से खाना आता नहीं, आपको ही खिलाना पड़ेगा। तो राहुल कहता ये क्यों खिलाइए, भाभी के हाथ से खाना दो। तो कहता हाँ तो हम भी तो कह रहे भाभी तो लगेगी मेरी, भाभी के हाथ से खा लेगी। राहुल कहता अपनी वाइफ के हाथ से खाना। कह रहा अरे यार उससे तो हम बोर हुए, अब इनके हाथ से खाएंगे, क्यों भाभी खिलाएंगे कि नहीं। तो राहुल कहता है भाभी। तो मीरा आती है, कहती है हाँ ये बोर हो गए आपसे, कह रहे, कह रहे ना। मैंने कहा बोर हो गए, मैंने कहा दादी मैंने ऐसा कहा। तो दादी बेचारी हंसती है, कुछ कहती नहीं है। और मालिया साहब देखते हैं कृष्णा का मतलब इतना मूड चेंज, तो कहते हैं बहुत चेंज आ गया। मीरा कहती कुछ चेंज नहीं आता, लिए रहते हैं तो खूब बकवास करते हैं, होश में रहते तो इनकी आवाज़ नहीं निकलती है। तो कहते नहीं ऐसा तो नहीं लगा, कह रहा सुबह ही मारे होंगे, इधर थोड़ा कम कर दिए हैं। तो माले साहब कहते अच्छा जाओ तुम अपना काम करो। कॉफ़ी बना के लाती हैं, देती हैं कृष्णा, कृष्णा पीते हैं।
कहते मेरा कुछ अच्छा बनाओ यार। तो कहते क्या खाएंगे बताइए। तो कहते कुछ अच्छा बनाओ टेस्टी सा, वही बकवास खाना मुझे नहीं खाना। तो कुछ अच्छा बनाते। तो राहुल कहता आज बाहर पार्टी करें। तो कहते नहीं मैं बाहर का नहीं खाएगी। मैं कह रहे अरे यार बाजार से नहीं बाहर दरवाजे पे बनाते हैं। कहते क्या बनाते हैं। तो कहते हैं लिट्टी बनाते हैं, लिट्टी दाल चोखा। तो तीसरा तीसरा कहते हैं हाँ बनाओ बनाओ भाई बनाओ खाते। बचपन का ही खाया हुआ है, याद नहीं है मुझे कब खाया था। तो कहते ये 10th में खाया था तूने आया यहाँ आए थे। तो कहता हाँ भाई तब का ही खाया, बनाते हैं चलो। तो बाहर बनता है उसका खाना और सब कुछ बनता है। और आदित्य रूबी और राहुल मिलके बनाते हैं, दादी बताती है कैसे कैसे बनता है। मीरा भी बनवाती है, रश्मि बाहर नहीं जाती धुएं की वजह से, उनको अंदर ही रखते हैं। मिसेस मालिया लगी रहती है। सब लोग खाने के समय बैठते हैं, खाते हैं, बातें बातें होती है। कृष्णा कहते भाई हम तो थक गए हम जा रहे हैं। कह रहे हैं भाई तुम इतना थक कैसे जाते हो। तो कृष्णा कहता है हाँ रूबी मेरे पास सोएंगी तो सुबह उठ के तुम्हें बता देंगी कैसे थक जाते हो। तो राहुल कहते भाई तू अपनी वाली के पास हो, वही सुबह बता देगी मुझे। क्या वो क्यों बताएगी तुझे, तेरी थोड़ी है जो तुझे बताएगी, रूबी बता देगी। तो रूबी बेचारी चुप रहती है। कृष्णा उठते हैं, रूम में जाते हैं, कहते हैं मीरा आना तो आइस लेती है ना। तो मीरा कुछ बोलती नहीं है। राहुल कहता है कम नहीं हुआ इनका। कहते था बस इतना ही हुआ है, 20 बोतल से 15 हो गया है, इससे ज़्यादा कम नहीं हुआ है। कहते इतना पीते हैं। कहते बहुत पीते हैं, गुस्से में रहते हैं तो ऊपर पूरी बॉटल लगी रहती है। बंसी भैया लाते हैं और दे जाते हैं धीरे से। तो राहुल बंसी को बुलाते हैं और सबसे पहले बंसी को डांटते हैं। तो कहते हैं भैया मेरे से मंगाते तो हम मैं 10-12 ही ला के देता। उस दिन ऑफिस में मैंने लाने से मना कर दिया तो इन्होंने एक साथ 3-4 पेटी मंगवाई थी और 2 पेटी एक ही दिन में पी ली थी इन्होंने। और फिर इनकी तबीयत खराब हो गई थी, घर पे आए तो किसी को बताया नहीं, बस सो गए। तो कहते हैं कि राहुल कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ हम बात करते हैं। राहुल फ़ोन करते हैं जिसके यहाँ दारू बिकती है उस शॉप पे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जब भी कंपनी में कोई भी मंगाए बोलना तो यहाँ की पुलिस ने मना किया है, 5 बोतल से ज़्यादा मत देना किसी को भी, कोई भी जाए। और एक और पूरा देना तो 4, आधा आधा देना तो 8 और पौवे का देना तो अपने हिसाब से दे देना। तो कहता है ठीक है भैया। और कहते हैं हमें यहाँ पे जो है वसुंधरा आवास पे एक भी बोतल नहीं आनी चाहिए। तो कहते हैं ठीक है नहीं आएगी। और फ़ोन करके रख देते हैं। मेरे ऊपर जाती है आइस लेके। कृष्णा कहते हैं कि वो आइस बैग भी लेती है, बैग में डालती है आइस और बोलते हैं कि बहुत पेन कर रहा है बैक में, थोड़ी सिकाई कर दो आइस से। तो मेरा करती है, देखती है निशान पड़ गया रहता है, पूछती है कैसे लगा। तो बताती हैं कि वहीं पे चोट लग गई कंपनी में फाइट करते हुए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो मेरा कुछ नहीं कहती। मेरा कहती है मुझे लगा आप पीने के लिए मंगा रहा है। कह रहे तुमने बंसी को मना किया, बंसी लाता ही नहीं है और किसी से मंगवाते हैं तो 4 मंगाओ तो 2 उसको भी चाहिए और फिर बदनामी भी बहुत होती है, तो बहुत सोच समझ के किसी से मंगवाना पड़ता है। कहती है तब ठीक है। कृष्ण कहते हैं प्रिंसेस कहाँ है। तो कहती है माँ के पास से, माँ के पास से आई नहीं रही है, नानी नानी करके माँ के पास ही खेल रही है। तो कहती है सो जाएगी तुम्हारे बिना, जाओ लेके आओ। कृष्ण कहते हैं तो मीरा कहती है जाओ ले आओ। तो कहते हैं हाँ जाओ लेके आओ। जाती है मीरा।
कि चलो पापा बुला रहे हैं, तो वो कहते नो नहीं मम्मा, मुझे नानी के पास छोड़ना है, आप लोग के पास नहीं छोड़ना, आप लोग तो मुझे छोड़ के नीचे चले जाते हो। तो सब लोग हंसने लगते हैं। मीरा कहती है चलो बेटा, रात में नानी को परेशान करोगी। कहती है नहीं नानी, नानी मुझे चुला लोगी अपने पास। तो मिसेस मालिया कहती है हाँ बेटा सुला लेंगे, आप मुझे चोल के नीचे तो नहीं छोड़गी ना। तो मिसेस मालिया कहती है नहीं बेटा, मैं आपके पास ही सोऊंगी। और मीरा को कहती है जाओ मीरा, सो जाओ तुम, अगर रोएगी तो हम बुला लेंगे। तो जाती है, बताती है कृष्णा को, बताएगी कृष्णा और मीरा खूब हंसते हैं। कृष्णा कहते हैं भाई बहुत संभल के रहना पड़ेगा, बच्ची कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। मीरा कहती है धीरे धीरे 3 साल की होने जा रही है, अब नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी। तो कहती है हाँ ये भी बात है। तो कृष्णा मीरा से कहते हैं मीरा जो अधूरा रह गया वो पूरा कर ले। तो मीरा कहती है ये क्या है। तो कहते हैं ये आपको चोट लगी है, आप सो जाइए, टाँके पे असर पड़ेगा। तो कहते प्लीज़ मीरा थोड़ा सा। तो कहते नहीं आपके टाँके पे असर पड़ेगा, आप सो जाइए। तो कृष्णा बस किस करते हैं लिप पे उनके, पकड़े रहते, नींद आती नहीं भैया, दिल बेचैन रहता है उनका, पलटी मारते रहते हैं। मीरा उनको पकड़ती है, अपने पास लेती है और सुलाने की कोशिश कर रही होती है। कृष्णा कहती एक काम कर दो मीरा। कहती है क्या। तो कहती है नींद नहीं आ रही है मुझे। तो कहते बताइए क्या कहे, क्या जो कहेंगे कर दोगी। तो कहती है हाँ बोलिए। कहती है कि अपना ब्रश मेरे मुंह में। तो कहती ये कौन सी आदत है आपके यहाँ, नींद नहीं आती तो मुझे करे। तो प्लीज़ मेरा प्लीज़। तो मेरा निकालती है, कृष्णा अपने मुंह में लेके बहुत देर तक सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, बेबी जैसे फीड कर रहा है वैसे सब कर रहे होते हैं। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होती है, सो जाते हैं। मेरा निकालती है मुंह में से, तो उठ जाते, कहते क्या हुआ। तो मेरा कहती है साइड चेंज करनी, इतनी साइड सोने में बहुत पेन हो रहा है। तो कृष्णा इस साइड आते फिर भी छोड़ते नहीं है। तो कहता हूँ मुझे अभी भी वैसे ही सोना है। तो मेरा दूसरे वाला अपने मुंह में डाल के सोते हैं, बहुत देर बाद फिर वो नींद आ जाती है, सोते हैं। मेरा कोशिश करती है मुंह में से निकालने की, तो पर वो बंद किए रहते हैं। मेरा भी उनके पास ही लिपट के सोई रहती है। थोड़ी देर बाद लूज होती है कृष्णा के। तो मेरा मुँह निकालती हूँ मुँह में से उनके, और ब्लाउज बंद करके अपना सो जाती हैं। बाद में प्रिंसेस को देख के आती है, प्रिंसेस जगी होती है, दूध की बोतल नीचे लेके जाती है और सुलाने की कोशिश करती है। तो मेरा की मम्मी कहती है कि ऊपर ही लेती जाओ। तो कह रही नहीं वो बहुत मुश्किल से सोए, अभी उठ जाएंगे ना, ये बहुत परेशान करती है, उनके ऊपर जाके चढ़ जाती है, बहुत मुश्किल से भी सुला के आ रही हूँ। तो कहती है कि अच्छा सुला लो। तब कहती है अभी सुला के लेती जाऊँगी। फिर कोशिश करती है तो प्रिंसेस भी सो जाती है, गोद में उठा के ले जाती है मीरा और सुलाती है। फिर जो है खुद भी सोती है। सोते सोते आधी रात में कृष्णा की नींद खुलती है। कृष्णा का तो मीरा तो कहते हैं हाँ, कहते पानी चाहिए, पानी देते पीते हैं तुरंत ही, और वो मतलब दर्द रहता है उनको, सो जाते हैं नींद में। तो सुबह होती है अगले दिन का, तो अगला नेक्स्ट पार्ट आपको सुनाते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं कल, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, सबको भी सेफ फील कराइए और खुद भी सेफ रहिए। ओके बाय फ्रेंड्स।